بہت سی خبریں ہیں، لیکن آغاز کریں گے ہمارے ادارے کی لیڈنگ اینکر سہراب برکت کو آج آف لوڈ ہی نہیں کیا گیا بلکہ گرفتار بھی کر لیا گیا ہے۔ پاکستان میں آپ دیکھ چکے ہیں، اب آغا شیخ سرور اور مزید کچھ صحافی بھی اس ٹائم ابڈکٹڈ ہے، کیا کہیں گے؟ یہ سلسلہ ابھی چل رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ تو یہی ہے کہ ہماری جو صحافتی کمیونٹی ہے وہ بہت ہی بکھری ہوئی ہے، منتشر ہے، اور کمیونٹی میں جو یونٹی نظر آنی چاہیے وہ نہیں ہے، اور حکومت اور پچھلے 3 سال سے کم از کم 3.5 سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ شہید ارشد شریف کے قتل سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور آج تک یہ جاری ہے، اور یہ واحد دور ہے 3.5 سال کا رجیم چینج آپریشن سے لے کے اب تک کا کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنے مقدمات صحافیوں کے خلاف درج نہیں ہوئے جتنا اس وقت 3.5 سالوں میں ہو گئے ہیں۔ شاید 75 سالوں میں اتنے مقدمات درج نہیں ہوئے جتنے 3.5 پونے 4 سالوں میں ہو گئے ہیں، اور اتنے زیادہ صحافیوں کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے، جھوٹے مقدمات قائم کیے جاتے ہیں، اور بیرون ملک سفر پر پابندی ہے، آف ایئر کر دیا گیا ہے، ان کا رزق، ان کے چولہے بند کر دیے گئے ہیں، ان کے بچوں کی جو ضروریات ہیں وہ کون پوری کرتا ہے اس کے بارے میں کسی کو علم نہیں، اور بہت زیادہ فیملی سفر کر رہی ہیں۔ تو سہراب برکت کا جو کل اغوا ہے ایئرپورٹ سے اور ان کی گرفتاری ڈالنا، یہ بھی اس سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور سہراب برکت کو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ایک پروفیشنل جرنلسٹ اور اپنا کام دیانتداری سے کر رہے ہیں، نوجوان ہیں اور جذبے سے سرشار تھے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ ایک اور بات بتا دوں کہ ان کا تعلق چونکہ کشمیر سے ہے، اور اگر مقبوضہ کشمیر کے کسی جرنلسٹ کو نئی دلی سرکار اس طریقے سے گرفتار کرتی تو اس وقت ہمارا میڈیا اور ہماری حکومت اور ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ایک ادھم مچایا ہونا تھا کہ جناب پتہ نہیں کون سی قیامت آ گئی ہے، اور انڈیا میں صحافت کا قتل ہو گیا ہے، کشمیریوں کا قتل ہو گیا ہے۔ لیکن اس وقت ہمارے ہاں یہ ہے کہ ایک آزاد کشمیر کے باسی جو کہ جرنلسٹ ہیں، قومی دھارے میں ہیں اور اہم کام کر رہے تھے، اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے تھے اور حکومت کو کرٹیسائز کر رہے تھے اور سچ دکھا رہے تھے، ان کو ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیا گیا۔ میں دیکھ رہا تھا بیرسٹر سعد رسول جو ان کے وکیل تھے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر موجود ہیں، لیکن ان احکامات کو بھی نہیں مانا گیا اور ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ میرا خیال ہے کہ یہ فسطائیت کا دور ہے، مختلف قانون بنا کے، کالے قانون بنا کے یہ سلسلہ کیا جا رہا ہے، اور اس ساری صورتحال کا تعلق صرف اور صرف یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے ایکسٹینشن کو، تسلسل کو اور استثناء کو اور غیر آئینی ترامیم جو ہو رہی ہیں، آئین شکنی ہو رہی ہے، جمہوریت کے خلاف جو اقدامات کیے جا رہے ہیں، بنیادی انسانی حقوق پامال کیے جا رہے ہیں، ان سب کے خلاف کوئی آواز نہ اٹھائے، الیکشن چوری کے خلاف کوئی آواز نہ اٹھائے، اس ناجائز رجیم کو کوئی کچھ نہ کہے، یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے، اور یہ 2-3 خاندانوں کی ذاتی اقتدار کی ہوس ہے جس کی وجہ سے پورا پاکستان سفر کر رہا ہے، اور ان میں سے کل سہراب برکت کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ سر، یہ جو ہم نے دیکھا آغا شیخ سرور اور رائے غلام علی، وہ صحافی بھی دونوں اس سے منظر عام سے غائب ہے، پھر سہراب کے ساتھ بھی یہ جو تسلسل ہے، ساتھ عمران خان کی ملاقات بھی نہیں ہوئی، پچھلے 24 دن گزر چکے ہیں، کیا کچھ بڑا کرنے کا پلان ہے جس کے لیے یہ صحافیوں کی گرفتاریاں بھی شروع کر دی گئی ہیں؟ دیکھیں، رائے غلام سرور اور رائے غلام علی اور آغا سرور، ان دونوں کو بھی الیکشن دھاندلی کے دن گرفتار کیا گیا، ضمنی الیکشن والے دن گرفتار کیا گیا، کیونکہ وہ ویڈیوز بنا رہے تھے، ان کے پاس ویڈیوز تھیں، کیونکہ 5.6 جو ٹرن آؤٹ تھا اس کو یہ لے کے گئے ہیں 15-20% تک، اور اس کے باوجود پاکستان کے عوام نے اس سارے سسٹم سے اپنے آپ کو علیحدہ کیا ہوا ہے، بائیک آؤٹ کیا ہے۔ جہاں عمران خان نے کہا امیدوار کھڑے ہوں 2 حلقوں میں، وہاں پہ مقابلہ ہوا، وہاں پہ ٹرن آؤٹ دیکھیں اور رزلٹ دیکھیں۔ اس کے بعد جہاں بائیک آؤٹ کیا تھا وہاں عوام نہیں آئے۔ ہر 2 صورتوں میں عوام نے اس جعلی نظام کے خلاف آواز بلند کی ہے، کہیں ووٹ دے کر اور کہیں ووٹ کا بائیک آؤٹ کر کے۔ تو آغا سرور اور رائے غلام علی کو بھی اسی لیے گرفتار کیا گیا، سہراب برکت کے ساتھ بھی یہی وجہ بنی، اور باقی جتنے بھی ہمارے صحافی بھائی ہیں جن کو آفر کیا گیا ہے، جن کو نوکریوں سے نکلوایا گیا ہے، ان کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ یہ جعلی اور ناجائز رجیم کو کسی بھی طریقے سے جواز بخشا جائے۔ اب چونکہ استثناء لے لیا گیا ہے، اور اب استثناء کے خلاف بھی کوئی آواز بلند نہ کرے،
हालांकि उलमा कराम जो हैं, बड़े बड़े जय्यद उलमा कराम, गैर सियासी उलमा कराम कह चुके हैं कि ये गैर शरई है, गैर इस्लामी है। खुलफाए राशिदीन अगर जवाबदेह हो सकते हैं तो फिर कौन है ऐसा जो जवाबदेह नहीं हो सकता। तो इसलिए ये सारे मामला उठाए जा रहे हैं। अब आने वाले दिनों में मजीद इमरान खान साहब पे जो पाबंदी है वो भी इसी सिलसिले की कड़ी है। 1 महीना हो गया बैन किया हुआ है, किसी किस्म की कोई मुलाकात नहीं हो रही और मुकम्मल तौर पर कैद तन्हाई में रखा हुआ है। उसकी हम इसी फोरम पे बात करते रहे हैं कि मैंने आपको बताया था कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और फिर आगे दिसंबर ये भारी तरीन महीने होंगे और आप देख लें कि इन 3 महीनों में पाकिस्तान के आइन को पामाल किया गया, जमहूरियत का खात्मा किया गया, इदारों का खात्मा कर दिया गया है। अब तो न सिविल इदारे महफूज हैं, न आइनी इदारे महफूज हैं, न अस्करी इदारे महफूज हैं। सबको डिमोलिश करके एक नया निजाम तख्लीक किया जा रहा है और फिर एक नया बयानिया जो है वो बनाने की कोशिश की जा रही है कि जनाब हम तो जमहूरियत के लिए बने ही नहीं, तो जमहूरियत निजाम ही अच्छा नहीं है। ये एक तवील दौरानिये का खेल खेलना चाहते हैं। और आज हम सुन रहे थे और पिछले 3 दिनों से जो री लॉन्चिंग हुई है बड़े मियाँ साहब की, और वो भी इसी सिलसिले की कड़ी है कि अगली इनिंग्स वो खेलना चाहते हैं। और अगला जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का जो ओहदा है 5 साल के लिए तख्लीक किया गया, ये बेसिकली एक एक्सटेंशन है। उस एक्सटेंशन को अब ये एंजॉय करना चाहते हैं मुस्तकबिल में। सर लेकिन इमरान खान से जो मुलाकात नहीं करवाई जा रही उस पे भारतीय मीडिया, अफगानी मीडिया प्रॉपर उसको प्ले किया जा रहा है, प्रॉपर इस पे प्रोपेगेंडास पूरे प्रोग्राम्स हो रहे हैं। ये जो एक हला बना हुआ है इसको पूरा क्यों नहीं किया जा रहा? आप 10 मिनट 12 मिनट की एक मुलाकात करवा के और बैनुल अक़वामी मीडिया प्रोपेगेंडास करने का उनको मौका दिया जा रहा है। ये दानिस्ता कर रहे हैं क्योंकि उसकी वजह यह है कि मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर नहीं सकते। ये कुछ एहसान नहीं है। किसी भी कैदी की मुलाकात इस तरीके से बंद नहीं की जा सकती और उनके खास तौर पे उनके फैमिली मेंबर्स की। चलें आप वकला से मुलाकात नहीं करवाते, आप उनके और सियासी रहनुमा हैं उनसे मुलाकात नहीं करवाते, लेकिन जो उनके डॉक्टर्स हैं उनकी मुलाकात करवाएं, वो मुआयना करें। उनके फैमिली मेंबर्स हैं, वो कल यही कहा था मंगल को नौरीन नियाजी साहिबा ने, उज़मा खान साहिबा ने, कि हमारी कम से कम 5 मिनट खड़े खड़े मुलाकात करवा दें, हम एक दफा देख लें और उसके बाद हमें तसल्ली हो जाएगी। तो वो भी नहीं करवाई गई। 2 बातें हैं, या तो यह है कि इमरान खान साहब पे ये सख्तियां कर रहे हैं, उनके साथ कोई अच्छा सलूक नहीं कर रहे। दूसरा ये है कि उनकी तरफ से एक जुमला भी आ गया, 2 जुमले भी आ गए तो उनके ये 2 जुमलों से भी ये सारे का सारा निजाम जो है ये कांपता है थर थर। और उनकी तरफ से 2 जुमलों का आने का मतलब ये होगा कि ये समझते हैं कि इनका सारे का सारा खेल इमरान खान खराब कर देंगे। ये इसलिए फिर जो गैर मुल्की मीडिया है उसको इस तरह से मौका मिलता है कि क्योस पैदा किया जाए, और उस क्योस का नुकसान जो है वो पाकिस्तान को हो रहा है। वो इमरान खान की जात को मसला नहीं है बल्कि ये पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। उसकी मैं रीजन बता देता हूँ। जब किसी भी मुल्क में जब इमरान खान एक पॉपुलर लीडर हैं, उनको कैद तन्हाई में रखा हुआ है, उनको इंतकामी निशान का इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, उन पे कातलाना हमले हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, इसलिए उनकी जिंदगी को अगर खतरात के बारे में खबरें आती हैं तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान में अनरेस्ट होने जा रहा है और पाकिस्तान को मजीद डिस्टेबल करने का इरादा है। तो जब इस तरह की खबरें आएंगी तो जो पहले ही हमारी मईशत का सत्यानाश हुआ है, IMF की रिपोर्ट हमारे सामने है, उससे मजीद पाकिस्तान जो है वो गैर मुस्तहकम होगा। इसलिए इनको अंदाजा नहीं है कि ये अपने छोटे से जाती इक़्तिदार, इख्तियार, ओहदे और फायदे के लिए, जाती इंतकाम के लिए ये पाकिस्तान की मईशत को, सियासत को, सहाफत को, अदालत को, वकालत को, शुजात को, हर तरह के तमाम शोबों को इन्होंने दाव पे लगा रखा है। सर दूसरी जानिब देखिए नोटिफिकेशन भी हो गया है, सब कुछ हो गया है। मैं असल में जानना वजह चाह रही हूँ कि ये मुलाकात आखिर क्यों नहीं करवाई जा रही, इसके पीछे क्या वजह है? कोई बड़ी कॉल आ सकती है, ये वजह है, लेकिन कहा जा रहा है लाइबल पार्टी के पास मौजूद। वजह बिल्कुल सिंपल सी है जी कि 26 नवंबर एक तो नोटिफिकेशन नहीं हो रहा, 2-3 बातें हैं। 26 नवंबर का कत्लेआम था, उस पे इन्होंने सोचा था कि कॉल आ जाएगी, 26 नवंबर जो गुजारना था वो गुजर गया। फिर ये चेयरमैन
जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी साहिर शमशाद मिर्जा की रिटायरमेंट का इंतजार कर रहे थे, वो हो गया। आप टाइमिंग्स देखें कि इधर से चेयरमैन 4 स्टार जनरल रिटायर हो रहे हैं, उधर से ये हो रहे हैं आपके मियां साहब रीलॉन्च हो रहे हैं, और ये दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। फिर तीसरा है नोटिफिकेशन रुका हुआ है। नवाज शरीफ साहब आते हैं, वो कहते हैं कि सिर्फ इमरान खान नहीं, इमरान खान को लाने वालों का भी सफाया होना चाहिए। यानी वो अभी भी मुतमईन नहीं है। जो फिस्तायत बरपा है इस वक्त पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के अवाम पे, वकला पे, अदलिया पे, सहाफियों पे, वो इस फिस्तायत की शिद्दत से मुतमईन नहीं है। वो कहते हैं इस फिस्तायत को मजीद बढ़ाया जाए, और इतना बढ़ाया जाए कि मजीद उन्होंने एक डिमांड लिस्ट दी है। और मेरा ख्याल है कि ये सिलसिला अगर शुरू करना ही है तो फिर जनरल ज़ियाउल हक साहब ने जितने भी पौधे लगाए थे वहीं से सिलसिला शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि जनरल अयूब खान साहब के जो पौधे हैं वो तो सारे वफात पा चुके हैं। अलबत्ता जनरल ज़ियाद साहब के पौधे मौजूद हैं, जनरल जिलानी के पौधे मौजूद हैं। उन सारों को फिर एक ही दफा इस कटहरे में ले आना चाहिए। फिर नवाज शरीफ साहब ने भी वही लफ्ज इस्तेमाल किया कि फितना, और मरियम साहबा भी कह रही हैं फितना, DGISPR भी कह रहे हैं फितना। तो इसका मतलब है कि इनकी आपस में बाकायदा तौर पे कोई मीटिंग्स होती हैं, बाकायदा तौर पे बयानिए पे इनकी ज्वाइंट सेशन होते हैं, और वहां पे बैठ के ये 2-4 खानदान जो हैं ये बैठ के फिर तय करते हैं कि हमने करना क्या है। ये सारे मामला जो हैं ये जुड़े हुए हैं आपकी एक्सटेंशन से। पहले उसको एक्सटेंशन, जब वो गाली बनी, फिर कहा गया तसलसल, फिर कहा गया सिनर्जी, फिर उसका नाम रखा गया इस्तिस्ना, फिर उसका नाम रख दिया गया 5 स्टार चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। आपने 75 साल से कायम 2 अहम तरीन इदारों को डिमोलिश कर दिया है, एक ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर को और दूसरा आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, और ये बेतौकीरी अभी तक चल रही है। इसीलिए इमरान खान को जेल में बंद किया हुआ है, कैद तन्हाई में रखा हुआ है कि वो उन तक ये बातें पहुंच रही हैं। वो जब भी मुलाकात होगी वो कॉल देंगे, एहतजाज की कॉल देंगे, और पाकिस्तान के अवाम ने उस पर निकलना है। वो हमने ज़िमनी इलेक्शन में देख लिया, 2 हलकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्टिसिपेट किया, लोग बाहर निकले, बाकी हलकों का बाइकआउट किया, अवाम बाहर नहीं निकले। तो इमरान खान की कॉल आएगी तो वो निकलेंगे। वकला तहरीक शुरू हो चुकी है, वो रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में, पिशावर में, कोयटा में, कराची में, पंजाब में, लाहौर में, ये हल्का हल्का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसलिए ये अंदर के खौफ है असल में, जिसकी वजह से ये परेशान है। सर आखिरी सवाल, ये नवाज शरीफ की भी रीलॉन्चिंग कर दी गई है, और रीलॉन्चिंग क्या वजह बनी जो नवाज शरीफ को भी सामने वापस लाया गया? क्योंकि जरूरत तो उनकी कोई लग नहीं रहा कि है किसी तरह से भी, ना वो पार्टी को रिवाइव कर सकते हैं। वो कुछ भी नहीं कर सकते। रीलॉन्चिंग एक वो है, समझाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। मेरा ख्याल है जो एग्रीमेंट हुआ है उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, ये रीलॉन्चिंग जो है वो भी एक एग्रीमेंट है, क्योंकि ये तो इन्होंने बता दिया कि अब हम जो चाहें करेंगे। इस्तिस्ना भी मिल गया है, और वोट वो कहते हैं कोई इशू नहीं है, वोट का कोई डाले ना डाले, हम रिजल्ट जारी कर दिया करेंगे। तो वो ये कर रहे हैं। हरीपुर हमारे सामने है, 129 लाहौर का हल्का हमारे सामने है। तो खंदकें खोद कर रिटर्निंग अफसरों को बिठाया गया और रिजल्ट लिया गया। ये चीजें मैसेज दे रहे हैं कि जनाब अब हम ना किसी आइन को, कानून को, जमहूरियत को, किसी चीज को हम नहीं मानते। अब नवाज शरीफ साहब की रीलॉन्चिंग जो है वो उन्होंने खिताब आम फरमाया, और हारी हुई सीटों पे उन्होंने विक्ट्री स्पीच कर दी, और बाइकआउट जिस पे किया था, जिसका टर्न आउट 5.6% है ऑफिशियली, जिसको फिर बढ़ाया गया बाद में ठप्पे लगाकर। तो मियां साहब क्या चाहते हैं, मरी की मुलाकात कर लें आप, जरा मरी का मामला देखें। पहले मरी में मुलाकात हुई फैमिली के साथ हमारे फील्ड मार्शल की, और उसके बाद फिर लंदन, फिर जनेवा, क्योंकि जिन दिनों नवाज शरीफ साहब लंदन थे और फील्ड मार्शल भी लंदन में थे, जिन दिनों नवाज शरीफ साहब जनेवा में थे, फील्ड मार्शल का भी एक विजिट जनेवा और ब्रसल्स का था। तो इस दौरान क्या हुआ, क्योंकि लंदन में एक प्रोग्राम रखा हुआ था, ओवरसीज पाकिस्तानी, ये ओवरसीज फाउंडेशन सरकारी प्रोग्राम था ये, उसमें शहबाज शरीफ साहब ने भी तकरीर करनी थी और फील्ड मार्शल ने भी करनी थी।
दावतनामे भी तकसीम हो चुके थे, लोगों को भी बताया जा चुका था, और कुछ हमारे जानने वाले थे उनको भी, उन्होंने भी हमें दिखाया कि ये दावतनामा आ गया है। फिर एट 11th आवर फील्ड मार्शल ने वो तकरीब छोड़ दी थी, और उस वक्त मियां साहब थे जिनेवा में, तो फील्ड मार्शल ने वो तकरीब छोड़ दी, और उसके बाद मुबैना तौर पर वो मुलाकात फिर उधर हुई। फिर मरियम साहबा के भी विजिट हैं अब्रॉड के, और मियां साहब भी बाहर रहे, तो इधर से कुछ गारंटर्स भी तलाश किए गए। अब जो नया एग्रीमेंट है वो मौजूद है। उस नए एग्रीमेंट के मुताबिक मियां साहब चाहते हैं कि मुझे दोबारा इख्तदार के ऐवानों तक पहुंचाया जाए। अब वो वजीर आजम बनेंगे या फिर ऐवान सदर जाएंगे, ये दो मामलात हैं। पीपल्स पार्टी को इन्होंने फारिग करना था, क्योंकि मियां साहब की रीलॉन्चिंग उस वक्त हुई जब कौमी असम्बली में नवाज शरीफ साहब को सादा अक्सरियत दे दी गई, ये ज़िमनी इलेक्शन के बाद। तो ये सारे डॉट्स आप मिला लें तो इवेंट्स, तो ये सारी की सारी बातें हैं, क्योंकि मियां साहब जो हैं वो कहते हैं कि मैं कोलिशन गवर्नमेंट के साथ नहीं चल सकता, मुझे किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है, मुझे सादा अक्सरियत दें। तो ज़िमनी इलेक्शन में वो सादा अक्सरियत भी उनको दे दी गई। अब पीपल्स पार्टी जिसके साथ एग्रीमेंट था, पीपल्स पार्टी का गिलानी साहब ने बता दिया कि 50-50 का एग्रीमेंट था कि आधी मुद्दत हम करेंगे, आधी मुद्दत करेगी नून लीग। वजारत उज़्मा भी 50-50 होगा, और चेयरमैन सेनेट 50-50, और फिर स्पीकर 50-50। अगर ये सारे 50-50 हैं तो इसका मतलब है ईवान सदर भी 50-50 होगा। तो ये इस तरीके से ये खेल रहे हैं जैसे कोई लूडो खेलता है आपस में बैठ के। तो ये 50-50 का फार्मूला गिलानी साहब ने याद करवाया है कि जनाब ये हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि फिर बिलावल को वजीर आजम बनाएंगे, फिर मरियम साहबा को कहाँ एडजस्ट करना है, क्योंकि ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी, और शहबाज शरीफ साहब को कहाँ एडजस्ट करना है, क्या वो वजीर खारजा बनना पसंद करेंगे। तो बुनियादी बात यह है कि ये दो खानदान हैं, एक अस्करी और एक हमारा सियासी। ये दो खानदान मिलकर अपनी ख्वाहिशात की, जाती ख्वाहिशात की तकमील कर रहे हैं, और इनको लेजिटिमेसी मिल नहीं रही। असल मसला यह है कि लेजिटिमेसी इनको नहीं मिल रही, जायजियत नहीं है इनके पास, इलेजिटिमेट गवर्नमेंट है। ये दो खानदान मिलकर आइन को तोड़ रहे हैं, कानून को तोड़ रहे हैं, जमहूरियत का सत्यानाश कर रहे हैं, हमारे एस्टेब्लिश्ड इदारों को ये डिमोलिश कर रहे हैं।